Hello students, once again I am here for you with an exercise 5.1 and 5.2 of chapter number 5, that is line and angles. So let's begin with little concepts of 5.1 first, then I will explain to you with an exercise 5.2. So begin with 5.1. In exercise 5.1, question number 9, here is a figure in which you have to find some questions. Like here are some parts of this question. So first part is in which is angle 1, this is a symbol of angle, and angle 1 adjacent to angle 2. So first of all we have to see the figure and see where is angle 1. Angle 1 is here and angle 2 is here. They are asking that is angle 1 क्या उसके adjacent में है? Adjacent मतलब उसके साथ वाला. क्या उन दोनों की एक कॉमन वर्टेक्स है? Yes, उनकी एक कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन आर्म है. तो hence both are the adjacent to each other. So answer will be yes, both are adjacent. Okay, now come to our next one, that angle AOC. Angle AOC, this one angle, and then adjacent to angle AOE. क्या ये वाला एंगल इस एंगल के एडजेसेंट है? नो, वो उसके साथ वाला नहीं है बल्कि वो उसके अंदर मर्ज हो रहा है. सो इट विल बी नो. Okay, now come to our next, that angle COE. COE, this one angle now, and EOD. EOD, this one angle, है ना? So angle COE and EOD form a लीनियर पेयर. क्या ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन में एंगल फॉर्म कर रहे हैं 180 डिग्री का. हेयर एंड दिस, जब मैं इन दोनों को मिला दूं तो क्या ये एक 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं? यस. सो आंसर विल बी यस. ओके, नाउ कम टू अ नेक्स्ट वन, दैट इज एंगल BOD. हेयर BOD and angle DOA. DOA. Now we can show like this. Angle BOD, here BOD, this one, and angle DOA. क्या ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री शो कर रहे हैं? Yes, both are a supplementary because इन दोनों का भी सम कितना होगा? 180, because this is a straight line. और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये कौन सा एंगल फॉर्म करेंगे? 180 डिग्री. सो आंसर विल बी yes. Now next one is angle 1 vertical opposite to angle 4. Angle 1 now angle 1 here, this red one, vertical to angle 4. yes, अगर यहाँ एक क्रॉस फॉर्म हो रहा है like this और इसमें एक कॉमन वर्टेक्स है और ये एक इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या ये अपोजिट में है? yes, हमें ये अपोजिट में नजर आ रहे हैं. सो yes, this is both are the equal to each other because of vertical opposite angles. So hence we can say yes. Okay, now last one is angle 5 का vertical opposite angle बताइए. अब यहाँ पर हमें vertical opposite angle बताना है angle 5 का. See here in this figure, this is angle 5. तो angle 5 की opposite angle कौन सा होगा? This is angle 5 और इसके opposite में angle कौन से नजर आ रहे हैं? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? That is 2 और यहाँ पर क्या है? 3. अगर मैं 2 + 3 को कंबाइन कर दूं तो ये कौन सा एंगल शो होगा हमें? एंगल 5 के अपोजिट. सो एंगल 5 के अपोजिट कौन सा एंगल होगा? एंगल 2 + एंगल 3. सो वी कैन राइट लाइक दिस. यस, इसके अपोजिट होगा एंगल
2 plus angle 3. Is it clear to you? Now come to our next question, that is in 5.1 only, that we have to find some unknown angles here. Like in this figure, there are two lines are here, intersect to each other, and x, y, z we have to find. An opposite angle here is one angle given to us, that is 55. So 55 के opposite कौन सा होगा? Angle x. So हम ऐसे लिख सकते हैं angle x is equals to, or simply you can write like this, x is equals to 55. Why 55? रीजन विल बी, बिकॉज आपको ये ध्यान रखना है कि ज्योमेट्री में बिना रीजन के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, एंड वो क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं होगा विदाउट रीजन. सो वी कैन से x is equals to 55 because reason is vertical opposite angle. Okay, now x plus y is equals to 180 degree. क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? x plus y 180 के इक्वल. क्या मैं इन दोनों को पूरे प्रॉपरली 180 लिख सकती हूँ? बिकॉज इट फॉर्म एक स्ट्रेट एंगल पर शो हो रहे हैं, और ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं? 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. सो x इज गिवन टू अस, दैट इज 55. तो हमने x की प्लेस पर कितना लिखा? 55. y हमें फाइंड आउट करना है, 180 इज गिवन टू अस. सो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 55. सो आंसर विल बी, कितना होगा आपके पास? 125. सो y विल बी 125 डिग्री. अब ध्यान से देखेंगे. अब हमें पता है y अगर हमारे पास 125 है, सो z इसके कौन से पर है? वर्टिकल पर नजर आ रहा है हमें. सो अगर y 125 है तो z भी कितना होगा? 125. So we can simply write like this, z is equals to 125 or z is equals to y because of vertical opposite angle. So hence all the three we have find it, or we got the answers. Okay. Now this basic concept of 5.1 is done. Now come to an exercise 5.2. Here is given that two lines are parallel to each other. This is given to you. So we have to just give the reasons for each one, that angle 1 is equals to angle 5. Angle 1 angle 5 के equal हमें बताना है. क्यों है? बिकॉज आपने फर्स्ट वीडियो जब देखी थी उसमें मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, दैट इंट्रोडक्शन पार्ट आई हैव गिवन टू अस, दैट जब एक एंगल एक्सटीरियर का और एक एंगल इंटीरियर का इक्वल शो होगा ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, सो दिस वन आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. सो वी कैन से कॉरेस्पॉन्डिंग angles. So hence angle 1 equals to angle 5. Okay. And similarly, you can say angle 4 is equals to angle 6. Why? What is the reason for it? Because then angle A is parallel to B. Angle 4, now angle 4 equals to angle 6. Now angle 4 equals to angle 6. जब angle 4 angle 6 के इक्वल है तो हम क्या ये बोल सकते हैं A पैरेलल है B के? बिकॉज इसका रीजन ये है दैट पेयर ऑफ, एक तो ये कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. एक तो ऑल्टरनेट है और इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये क्या है? इक्वल हैं. तो हेंस लाइंस आर पैरेलल. तो इस वजह से ये लाइंस क्या है? पैरेलल हैं. नेक्स्ट में देखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन दोनों का सम 180 बोला है. दिस हियर एंगल 4 एंड एंगल 5, इन दोनों का सम 180 है. दिस इज गिवन. सो क्या हम ये बोल सकते हैं दैट A is parallel to B? Yes, because सम ऑफ जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं
उनका सम 180 डिग्री होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, हेंस दे आर पैरेलल लाइंस. Okay, now come to question number second one. In question number second, that here is again a figure in which you have to find some its parts. Now first one is corresponding angles. सबसे पहले हमें corresponding angle find out करने हैं. हमें कौन कौन से corresponding angles show हो रहे हैं, like 4 and 8, 3 and 7, 1 and 5. 1 इंटीरियर और एक एक्सटीरियर को हम देखते चले जाएंगे और लिखते चले जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 4 and 8. नेक्स्ट वन इज 3 and angle 7. नेक्स्ट angle 1 and angle 5. नेक्स्ट वन इज angle 2 and angle 6. हमें यहाँ से this one is interior one, this is an exterior angle, so on the same side we can write like this. Now pairs of alternate interior angle, alternate means opposite पर हैं, okay, और interior angles हैं. So 3 and 5 both are alternate interior one. So 3 and 5, 2 and 8. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अंदर वाले एंगल इंटीरियर मतलब 3, 2, 5, 8 ये चारों कौन से हैं, इंटीरियर हैं. इस लाइन के जो अंदर एंगल्स हैं उनको हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं. अब ऑल्टरनेट पर कौन है, 3 and 5 and 2 and 8. So 3 and 5, 2 and 8. Next one is pair of interior angles on same side of transversal. अब same side पर suppose I am taking this is a transversal line. अब इसकी एक साइड पर चलते हैं, मुझे इस साइड जाना है, this is right side. तो मेरे पास right side पर interior angles कौन से हैं, 2 and 5. So 2 and 5 क्या है, interior है, same पर है. तो we can simply write like this, angle 2 and angle 5. Similarly इसके left hand side पर कौन से angle है, 3 and angle 8. So angle 3 and angle 8. Okay. Now vertical opposite angle. Vertical opposite angle का मतलब है इसका एंगल का अपोजिट कौन सा है, एंगल 1. So we can write like this, angle 3 and angle 1. Next is angle 4 and angle 2. Angle 4 and angle 2. Next is angle 5 and angle 7. Last one is angle 8 and angle 6. These all are different parts of question number second. Now come to question number third. Now in question number third, here is a part that given P parallel to Q. हमें P parallel given है, already given है that P parallel है Q के. So इसमें जो भी ये एंगल्स फॉर्म होंगे वो हमें पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये सब एंगल्स हम उसमें कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज इट इज गिवन टू अस दैट P पैरेलल टू Q. So first of all we have to find that it is given that 125 is here. So which angle will be here? This is 125. So ये वाला एंगल कितना होगा, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो ये एक लीनियर पेयर शो कर रहा है. Yes. So how we can find out F, that 125 plus angle F is equals to 180 degree. Reason is linear pair angle. Okay. Now 125. अब 125 को यहाँ से हमें वहाँ लिखकर जाना है तो हम क्या लिखेंगे, 180 minus 125. So what will be the answer now? That is 55 degree. So it means angle F is 55. अब अगर ये 55 है तो एंगल E कितना होगा, it is also 55. How? Because both are a vertical opposite angle. So we can simply write like this, E is equals to F, because E is equals to 55. Reason is vertical opposite angle.
ओके, नाउ अगर E हमारे पास 55 है तो A हमारे पास कितना होगा? अगेन 55. Why? Reason is A is equals to E. A is equals to 55 because of corresponding angle. Because corresponding angle. Now, अगर A हमारे पास 55 है तो C हमारे पास कितना होगा? 55 डिग्री. Why? Because vertical opposite angle. So we can simply write like this. This is also 55. अब अगर now अगर ये 125 है तो D हमारे पास कितना होगा? 125. Why? Because of corresponding angle. Okay. Now in question number 4, here is again we have to find the value that for x in first also, in second part also. Now here 110 is given here, so x is already here. So what we can do, either we can do one thing that we can let it here be y. हम इसको y assume कर लेते हैं that यहाँ पर एक एंगल है y. So 110 plus y is equals to 180 डिग्री कर लें because of linear pair angle. और ये completely क्या फॉर्म करेगा? 180 डिग्री. So y will be 180 minus 110, so that will be 70 degree. So we can say y की वैल्यू कितना है? 70. तो x की वैल्यू कितनी होगी? बिकॉज एक एक्सटीरियर का एंगल है, एक इंटीरियर का एंगल है. सो वी कैन से दिस इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. सो x इज इक्वल टू y बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. सो सिंपली वी कैन से x इज इक्वल टू 70 डिग्री बिकॉज ऑफ रीजन CA, that is corresponding angle. Okay, so next one is 100 and x. हमें देखने से ही समझ में आ रहा है that 100 is here at the exterior one and x is at the interior one. So x and 100 same transversal पर हैं. So we can simply write like this: x is equals to 100 degree because of corresponding angle. और यहाँ पर आप बोलोगे 80 का मैम क्या रोल है? बिकॉज 80 को हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज गिवन जस्ट टू कंफ्यूज यू. ओके, सो आप कंफ्यूज भी कह सकते हैं या फिर इसका कोई और मेथड से भी हम इसको यूज कर सकते हैं. आप इसको इसलिए यूज कर सकते हो दैट 80 को यहाँ फाइंड आउट किया तो आप यहाँ से इसको फाइंड आउट कर लो दैट सेम इंटीरियर जो होते हैं एंगल्स उनका सम कितना होता है? 180. सो 180 माइनस 80 कितना हुआ? दैट इज 100 डिग्री. अब ये 100 है तो x की वैल्यू भी कितनी होगी? 100 बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. तो आप किसी वे में से भी आप इस x को फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. हियर इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो ABC DEF दैट एंगल ABC इज गिवन टू यू दैट इज 70 डिग्री. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है DGC. आपको DGC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है DEF. इन दोनों की आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. अब DGC की वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट करोगे? DGC अगर हमें पता है AB पैरेलल है इस DG के और DE के, सो हम ये कह सकते हैं एंगल B जो हमारे पास ABC है दैट विल बी equals to angle DGC के because of corresponding angle. अब ये corresponding angle है so angle DGC कितना हो गया हमारे पास? 70 डिग्री. अब ये 70 है तो ये भी कितना होगा? 70 डिग्री. Why? Because ये दोनों भी क्या है? corresponding angle. So DEF equal है DGC के because of corresponding angle. So angle DEF again is equals to 70 degree. So hence we have find these two angles. Now come to a last question that is 6-1. हमें ये बताना है that whether
L पैरेलल है M के या नहीं है. ओके, सो फर्स्ट वन इज, अगर ये L M के पैरेलल होगा, ये तभी होगा जब इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री. सो 126 प्लस 44 को ऐड करके हम चेकआउट करेंगे. पहले 126 प्लस 44 कितना होगा, दैट इज 4 प्लस 2 6 एंड 1 7. सो 170. क्या 170 180 के इक्वल है? नो, दिस इज नॉट इक्वल. सो L M के पैरेलल नहीं है. नाउ नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट वन. अगर ये 75 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 75. ओके, अब इन दोनों का सम, क्या 75 प्लस 75 कितना हो रहा है 150. क्या इन दोनों का सम 180 है? नो. सो आंसर इज नो, ये भी इसके लाइन पैरेलल नहीं है. नाउ कम टू नेक्स्ट वन. अब हमें ये चेकआउट करना है दैट अगेन ये 57 है और ये 123 है. पहले आप इसको फाइंड आउट कर लो. ओके, या फिर आप इसको फाइंड आउट कर लो. हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं सिंपली. ओके, सो 57 plus this angle, suppose this angle will be M, so 57 degree plus M is equals to 180 degree. So reason will be linear pair angle, so M is equals to 180 minus 57. अब इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 123. क्या ये 123 और 123 इक्वल है? यस. तो दिस मीन्स L M के पैरेलल है. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट वन. दिस इज 72. या फिर आप इसको फाइंड आउट कर लो या आप इसको कर लो. इसको करोगे तो वर्टिकल एंगल से आपको ये देखना है दिस इज 72. ओके, सो अगर मैं इसको सपोज इस वाले एंगल को मैं ले लेती हूँ x. ओके, सो x इज इक्वल्स टू 72 बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल. तो क्या अब इन दोनों का सम 180 आ रहा है? दैट 92 प्लस 72 डिग्री कितना होगा? अगेन 170 डिग्री, बट नॉट इक्वल्स टू 180. सो इट मीन्स दीज बोथ लाइन्स L और M पैरेलल नहीं है. सो कौन से वाला हुआ? थर्ड वन इज in which reason is satisfied and L and M parallel है. So like this you can attempt all the questions. You all are clear with this tutorial. So this will clear you the concept of lines and angle. So next time we will begin with congruence of triangle. Till then, take care and take care of your family. Bye bye.